Okay, chapter number 1 is just basically Oracle 10G database architecture explanation. We have to study some memory structures, background processes, we have to study disk structures, what's basically the backup and recovery strategies, and how to use just like your different data files and all these stuff. So let's start from some Oracle apps. Oracle database, first of all, database which provides you a repository under some sets on which you can use some language for proper data management like SQL, QBE and other languages you can use here. It provides you the robust data tier. And then application server, it's a middle tier solution. Like if you want to use some or you have developed some J2EE apps, so they can be easily deployed on your AS. Oracle applications, like in an application you can use Oracle Financial or Financial all modules like with respect to development जो भी आपके functional modules चल रहे हैं. Then collaboration suite CS for mail management is just a perfect substitute of your Exchange server. जैसे आपका Microsoft Exchange server चलता है exactly like आपका collaboration suite है. Collaboration suits the background database. फ्रंट साइड पे आपके जितने भी ईमेल्स हैं, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोज हैं, यू कैन क्रिएट योर होल सर्वर. बट इफ यू आर स्टिल opt for some customized, highly customized development, Oracle Developer Suite is there and you can use Developer 10G. Then so many other Oracle services like Oracle Education Service, in addition to that one like Metalink services, some repository services, your like workbench type tools. To migrate your data from SQL Server to Oracle, we have to use some Oracle services. So just concentrate on a first one with the name Oracle Database. In a database, nowadays we guys are just using a term 10G after 9i. Basically G stands for grid. Here we guys have to emphasize toward grid computation. But grid is something else as compared to your SMP machine architecture. So let me explain something. What's basically grid and why we need grid. Before you can say the concept of grid, at a corporate level we have a concept of use some hardware machine. We guys have some architecture like SMP, MPP, NUMA or cluster machine concepts, but that was a past, not a present. Up to you can say 2005, year 2005, from 1995 to 2005, that era was basically of SMP machines, MPP machines, NUMA machines and cluster machines. The first one, symmetric multiprocessing machine. Here like आजकल जितनी भी आप HP UX की देखते हैं, Unix की मशीन देखते हैं जो भी ब्रांडेड हैं like Dell server या HP UX server जिस पे you can have like 1 to 8 GB shared memory and a lot of CPUs जो कि उसको इकट्ठा ही शेयर करते हैं. They have their common storage underlying जो भी आप RAID या SAN लगा लें. These machines are primarily SMP but they are quite costly and the thing is that के once आपको कोई चीज़ मशीन परचेज की तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऊपर स्विच अप रहना पड़ेगा. बट देन फिर SMP के अगेंस्ट न्यू वन आर्किटेक्चर आया कॉल्ड मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, MPP आर्किटेक्चर. MPP आर्किटेक्चर सेज कि हर एक CPU की अपनी डेडिकेटेड रैम होगी और उसकी डेडिकेटेड IO डिवाइस वगैरह भी होगी. एंड इट्स क्वाइट रोबस्ट कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू जो कि पुराना SMP वाला आर्किटेक्चर आता था. टाइटली कपल्ड rather than tightly coupling, here we have some loose coupling. After that, but still MPP इस वक्त भी मार्केट में बहुत हैवीली यूज होती है, खासतौर पे डिफेंस एंड सो मैनी अदर आर्किटेक्चर, बट दे आर क्वाइट कॉस्टली मशीन्स. कह लें कि 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ से नीचे तो उसकी कोई आम मशीन भी आपको अवेलेबल नहीं. एग्जैक्टली लाइक इफ यू वांट टू मूव अप टू एनर्जी सेक्टर फॉर यूरेनियम अपग्रेडेशन या जो भी 5th जनरेशन के आपके प्लेन्स हैं, they have to use some NUMA architecture or cluster architecture, non-uniform memory access architecture and cluster architecture, which is a hybrid of you can say SMP, MPP and NUMA. But basically they are quite costly architectures. So definitely सोचा गया कि जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, why not to create a grid. Grid basically provides you the same computational power, वही computational power जो कि SMP और MPP या NUMA या क्लस्टर मशीन आपको प्रोवाइड करेगी, ग्रिड भी वही चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा. बट व्हाट बेसिकली ग्रिड इज, यही रेगुलर ये जो आपका आम लैन नेटवर्क है जिसमें आपने x86 आर्किटेक्चर कंपैटिबल मशीन्स लगाई हुई हैं एंड यू आर गोइंग टू यूज़ योर रेगुलर वन
LAN सर्विसेज, यही सर्विसेज, यही जो आपके पास लूजली कपल्ड मशीन्स पड़ी हुई हैं, दे वुड जस्ट एक्ट लाइक एज अ वन क्लस्टर एंड they would definitely provide you the computational power equivalent to any SMP, MPP, NUMA or cluster, and that one concept is primarily called grid. But definitely अगर आप इसको grid कहते हैं, so आम जैसे हमारी हार्ड डिस्क में होता है कि we have a concept of file, हमारे पास कोई allocation unit का concept नहीं होता, rather than अगर हम SAN या हम NAS units पे जाएं तो we have a concept of file stripping या फाइल यू कैन से मिररिंग टाइप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं. सो हाउ टू कम इनटू रियलिटी, अगर ये ग्रिड की हम बात करते हैं, सो डेफिनेटली वी हैव टू यूज सम सर्विसेज. अच्छा बात है ग्रिड कंप्यूटिंग का, आपने डिफरेंट ये सोर्सेज मिला के ग्रिड बना दी, ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट भी है कि हम सर्वर के रिसोर्सेज को क्लाइंट पे यूज कर लें. जी डेफिनेटली, बल्कि मैं इसी तरफ ही आ रहा हूँ कि बेसिकली मैं कह रहा था जो SMP, MPP, न्यूमा और क्लस्टर मशीन्स वो पुराने वक्तों की बातें. अब ग्रिड आम यही x86 आर्किटेक्चर की मशीन्स जो आपके सामने पड़ी हुई हैं, इन्हीं को मिला के आप उसी SMP के इक्विवेलेंट कोई मशीन तैयार कर सकते हो. अब ये देखिए हेयर, अगर आप ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो डेफिनेटली फॉर अ ग्रिड यू हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्ड स्टोरेज ग्रिड, डेटाबेस ग्रिड, एप्लीकेशन ग्रिड एंड यू हैव टू यूज ग्रिड कंट्रोल. आपको ये 3 सर्विसेज मिलानी पड़ेंगी. जब तक आप ये 3 सर्विसेज नहीं मिलाएंगे, यू डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल Oracle हेयर्स प्रोवाइड यू स्टोरेज ग्रिड. अब स्टोरेज ग्रिड मींस कि आपके पास जस्ट लाइक जैसे SMP मशीन होती थी, उसके साथ आपकी NAS या SAN यूनिट लगा दिया या RAID मशीन आपने उसके साथ लगा दी, इंस्टॉल कर दी. बट यहाँ पे यही चीज़ इन ASM, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, Oracle प्रोवाइड्स यू ASM आर्किटेक्चर. ये टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है, ऑन अ लिनक्स x86 आर्किटेक्चर के ऊपर, और इट्स यू कैन से ये कि प्रोप्राइटरीशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. रादर देन कि अगर आप HP UX की मशीन परचेज करते तो आपको HP का फाइल सिस्टम परचेज करना पड़ता था. इसी तरह सन का अपना फाइल सिस्टम आपको परचेज करना पड़ता है, IBM का अपना करना पड़ता है. इसी तरह से Oracle क्लस्टर फाइल सिस्टम है, Oracle OCFS 1 and 2 यू हैव टू परचेज और यू हैव टू डाउनलोड, और आपको मेटालिंक की जिसे कहते हैं वो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, देन यू कैन यूटिलाइज इट. Rather than that one, Oracle provides you the quiet beauty of ASM. ASM just avoids you any need of OCFS. आपको किसी किस्म का कोई क्लस्टर फाइल सिस्टम नहीं चाहिए. ASM उसका अपना डिस्क ग्रुप होगा, उसकी अपनी डिस्क होंगी, उसके अपने एलोकेशन यूनिट होगा जो कि ऑटोमेटिकली फाइल को स्ट्रिप करेगा, फाइल को मिरर करेगा, फाइल की लोड बैलेंसिंग करेगा. वो अपना एलोकेशन यूनिट 1 MB to 4 MB ईच यूटिलाइज करता है, और उसमें कोई कॉन्सेप्ट लाइक जैसे आप आम हार्ड डिस्क के ऊपर कोई फाइल देखते हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक दैट वन. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क ग्रुप एंड डिस्क, ठीक है. उसकी ऑटोमेटिकली वो लोड बैलेंसिंग भी करेगा और आपको 100% प्योर स्टोरेज आर्किटेक्चर प्रोवाइड करेगा. सो मीन्स फॉर वन, अगर ग्रिड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहले तो डेटा मेंटेनेंस के लिए स्टोरेज ग्रिड होना चाहिए. नंबर 2, फॉर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये जो आप आम डेटाबेस यूज करते हैं एज अ सर्वर, उसके लिए भी कोई ग्रिड होना चाहिए. एंड हेयर वी हैव टू यूज रैक, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर. इसका पूरा एक सिलेबस है आपके पास रैक का. रैक ऑन ASM, रैक ऑन रॉ डिवाइसेस, रैक ऑन OCFS एंड OCFS2 आर्किटेक्चर, जिसमें आप यही रैक डिफरेंट लाइक कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिप्लॉय करना सीखते हैं. बात है, आपने ASM की बात की और रॉ डिवाइसेस की बात की. रॉ डिवाइसेस, ये जो ASM आर्किटेक्चर है ये रॉ डिवाइसेस पे भी हो सकता है. जी डेफिनेटली, ये रॉ को भी यूज कर सकता है. जी. और इसलिए डिफरेंट पार्टीशन या जो एक्चुअली हमारा फाइल सिस्टम वो होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं. देखिए, अगर आप एक्चुअल फाइल सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो फिर ASM आपको कोई कन्वीनियंस नहीं देगा. बेसिकली उसी की जिसे कहते हैं एक स्वीप किया गया है Oracle से इसके, रादर देन कि आप, क्योंकि अभी तक Oracle के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल पे यही क्रिटिसिज्म था कि व्हाई यू डोंट गाइस हैव एनी योर ओन फाइल सिस्टम. Oracle स्टिल डेवलप्ड OCFS, Oracle क्लस्टर फाइल सिस्टम एंड Oracle क्लस्टर फाइल सिस्टम 2. ये प्योर Oracle की अपनी प्रोडक्ट्स हैं. और इफ़ यू वांट टू डिप्लॉय सम रैक, यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर OCFS और OCFS2. आपको फिर ASM नहीं, क्योंकि ASM क्लस्टर रेडी सर्विसेज को एक्टिवेट नहीं कर सकता, बिकॉज जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, सो आपकी क्लस्टर रेडी सर्विसेज CRS पहले आपकी अप हो जानी चाहिए. एंड वी हैव टू यूज OCFS2 डेफिनेटली फॉर दीज वन. हार्ट बीट के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं. एंड डेफिनेटली जो लेटर ऑन लाइक फॉर डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल, वी हैव टू यूज ASM. वो डेफिनेटली हम ASM यूज करते हैं. बट वोटिंग डिस्क प्रिपेयर करने के लिए एंड सो मेनी अदर टास्क के लिए वी नीड OCFS2 स्टिल. इसका ये मतलब हुआ कि जो ASM हम यूज करेंगे सिर्फ
ऑरेकल इंस्टॉल हुई जी जी other than कोई नो इस पे कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं होगा. रिमेंबर, इस पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा. इस पे सिर्फ ऑरेकल की अपनी फाइल्स इंस्टॉल होंगी, प्योर एंड प्योर. बिकॉज ASM आप इवन के ऑरेकल की भी पूरी फाइल्स नहीं होंगी. ऑरेकल की भी सिर्फ चंद कैटेगरीज की फाइल लाइक डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीड लॉग फाइल, आर्काइव लॉग फाइल सिर्फ और सिर्फ सेव होंगी. रिमेनिंग वन आपका सारा सॉफ्टवेयर कहीं और आप रखेंगे. अपना जितना भी ऑरेकल सॉफ्टवेयर है वो आप अलग रखेंगे. लाइक स्टेज हमारे हैं उसके जी लिए जी 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 डेफिनेटली इंस्टॉलेशन के लिए हम ये सब यूज करेंगे जी फॉर एक इंस्टॉलेशन हार्ड डिस्क पे हम लाइक कर सकते हैं 2 पार्टीशंस लगे जी. बट इन ASM we have a concept of like a disk groups. वहाँ पे किसी एक डिस्क की बात नहीं होती. We definitely provide you some like a sort of 10 or 20 just like जैसे रेड में होता है. रेड में आप देखें कि उसी बॉक्स में जो फिजिकल डिस्क पड़ी होती हैं. यहाँ पे अगर आप एज मिनिमम एज पॉसिबल कि अगर आप एक हार्ड डिस्क को भी यूज़ करते हैं तो वो एक हार्ड डिस्क की 20 डिस्क शायद उसने बनाई है. ठीक है और उस फाइल को ऑटोमेटिकली वो मिरर कर रहा होगा. उसके ऊपर लोड बैलेंसिंग और सब काम वो कर रहा होगा सॉफ्टवेयर लेवल पे. ओके देन वी हैव टू यूज सम डेटाबेस ग्रिड लेटर ऑन. अभी आज जैसे पहला चैप्टर एंड होता है तो मैं वंस अगेन ग्रिड को विद रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर इसको एक्सप्लेन करूंगा रैक को. बट राइट नाउ जस्ट फॉर योर के यहाँ पे एक डेटाबेस आपका चल रहा है और उसके ऊपर मैनी इंस्टेंसेस हैं और ईच एंड एवरी इंस्टेंस शुड बी ऑन अ सेपरेट हार्डवेयर मशीन. ठीक है, जो कि एक ही डेटाबेस को शेयर करेंगे. बट द थिंग इज दैट कि शुड बी डेफिनेटली माइट बी पॉसिबल. आप इसके अंदर कैशे फ्यूजन सर्विसेज भी तो यूज कर सकते हैं ना, जो कि एक इसको पूरे के पूरे को स्विच अप कर सकता है दूसरे पे. आप कह रहे हैं कि जो डिफरेंट इंस्टेंसेस है डिफरेंट हार्डवेयर मशीन्स पे चलने चाहिए या चल भी सकते हैं चल सकते हैं. ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि ये डिपेंड करता है आपके क्या लें ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर पे. ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर पे डिपेंड करता है. अगर तो ऑरेकल सर्टिफाई करता है तो डेफिनेटली चलता है. अगर ऑरेकल सर्टिफाई नहीं करता तो माइट बी पॉसिबल कि आपको अपनी कोई शेल स्क्रिप्टिंग करनी पड़े. बट हियर व्हाट हैपन्स इन अ रैक, like first of all failover architecture quite sound. Like in a failover architecture we have only two things, whether to deploy a data guard or to use a rack. So अगर आप रैक यूज करते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन failover like टॉफ टाइप थिंग्स आपको अवेलेबल होती हैं. इन एडिशन टू दैट वन के इवन आपकी वन होल मशीन गॉन टू बी डाउन सो स्टिल आपके ऊपर किसी किस्म की कोई इतनी डिफिकल्टी राइज नहीं होती. और इवन वन रैक नोड होल गॉन टू बी डाउन as a whole rack gone to be down, you have cluster ready like cluster guard 1 and cluster guard 2 architecture. just like जैसे आप data guard करते हैं rack का भी अपना data guard है with the name cluster guard. और अगर आप cluster guard 1 और cluster guard 2 यूज करते हैं so you gone to switch up to the subsequent rack. आपका जो एक रैक है वो स्टैंड बाय रैक के ऊपर शिफ्ट अप हो जाएगा स्पीड के साथ. एंड इवन कि अगर आपकी पूरे का पूरा 10 क्लस्टर ऑफ मशीन्स गॉन टू बी डाउन सो आप स्टैंड बाय रैक के ऊपर स्विच अप हाँ उसमें स्ट्रिपिंग भी हो रही होती है और उसमें फेलोवर सर्विसेज भी हो रही होती हैं. उसमें मिडल टियर सर्विसेज भी आपकी सारी की सारी रेप्लिकेट हो रही होती हैं. इस रैक के केस में हमारे पास एक्चुअल डेटा फाइल्स रहेंगी मेन, ठीक है, हमारी कंट्रोल फाइल्स. और मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं इस चैप्टर के बाद में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज आई वांट टू explain first all these file types and then I have to explain like ODS, OSS, rack, grid, each and everything. Then application grid की बारी आती है. For application grid we have to use Oracle streaming. Oracle streaming quite robust concept of our application, but application में जैसे कि पिछले ज़माने में asynchronous और synchronous सिर्फ 2 types थी. नंबर 2 के वो सिर्फ Oracle data types को support करता था, no concept of user defined data type. बट हेयर आप जावा की डेटा टाइप यूज़ करें. आपकी एक जो 2 ऑरेकल और 2 और मोर देन 2 ऑरेकल सर्वर्स चल रहे हैं, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स को रेप्लिकेट करवाएं. हेयर वी हैव अ प्रॉपर प्रोपगेशन एरिया, वी हैव अ प्रॉपर लाइक सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस जो भी इंटरसिंक्रोनाइजेशन है. इसमें तमाम के तमाम जो भी आपकी डेफर्ड क्यू वगैरह बनेगी उसकी तमाम डिफिकल्टीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व की जाएंगी. एंड द लास्ट वन कॉन्सेप्ट इज जस्ट रिगार्डिंग ग्रिड कंट्रोल. सोर्स है आपका ना आपने यूज करना है वो किधर है सीसीटीवी वो देखो मुझे उसकी कॉपी चाहिए शायद से मार रहा है. Okay, the last one is basically grid control. सिर्फ बात करें Oracle Streams आपने कहा कि एप्लीकेशन ग्रिड क्या एप्लीकेशन लेवल पे ये जी जी तो ये डेटाबेस लेवल पे हम स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते. नो द थिंग इज दैट किसी ज़माने में ये होती डेटाबेस लेवल पे ही है.
but like you must have to choose some source database and you have to choose some destination database. These are basically these two sources and destinations. These are two repositories, but application grid is the middle tier between these two. लाइक अगर मैं यहाँ से डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मुझे कोई प्रोपोगेशन स्टेज एरिया बनाना पड़ेगा, फिर मुझे उसकी यहाँ पे इसे कहते हैं रिसेप्शन करनी पड़ेगी, स्कैनिंग करनी पड़ेगी, एंड इफ आई हैव मोर देन वन डेटाबेसेस तो जी उसके बीच में वही एप्लीकेशन लेवल पे इट्स बेसिकली द न्यू नेम ऑफ रेप्लिकेशन. पुराने ज़माने में जिसे आप रेप्लिकेशन कहते थे, नाउ डेज वी गाइस आर जस्ट सेइंग ओरेकल स्ट्रीमिंग. ठीक है, लेकिन इसके लिए खासा यानी रेप्लिकेशन को जिसे कहते हैं एक स्विच अप किया गया, लिफ्ट अप किया गया है. वही जो रेप्लिकेशन किसी ज़माने में अगर आप एसिंक्रोनस करना पड़ती थी आपको तो लग पता जाता था, क्योंकि ट्रांजैक्शंस लोकल भी हो सकती हैं. से कि अगर एक मशीन से जी अब बट डिफ़िकल्टी ये भी होती है ना कि जैसे देखिए एयरपोर्ट्स हैं. अब एयरपोर्ट पे कोई भी पाकिस्तान में अगर एंटर होता है सो सब पे एंटर होना चाहिए, कहीं से भी आप एग्जिट होते हैं सबसे एग्जिट होना चाहिए. यू हैव टू यूज सिंक्रोनस. बट अगर आपके डिफरेंट सेंटर्स हैं ना कराची ना लाहौर, आप चाहते हो लाहौर सेपरेट चलता रहे बट आफ्टर 1 hour गॉन टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद कराची सर्वर, यू हैव टू यूज एसिंक्रोनस. बट डेफिनेटली उन दोनों का ब्लेंड भी है और उसमें भी अ लॉट ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं. बट वी हैव टू यूज सम ग्रिड कंट्रोल लाइक EM विद ग्रिड कंट्रोल, जिसे हम 9i में कभी किसी ज़माने में ओरेकल मैनेजमेंट सर्वर एंड ओरेकल इंटीग्रेशन सर्वर के नाम से पढ़ते थे. द सिमिलर कॉन्सेप्ट हेयर इज कॉल्ड ग्रिड कंट्रोल. आपके पास एक ऐसा फैसिलिटी आ जाएगी ना EM कि आप बैठे ASM को भी देखें, ASM को भी सेंट्रली मैनेज करें, आपका रैक डिफरेंट नोड पे चल रहा है विद क्लस्टर गार्ड, आप उसे भी हैंडल करें, स्ट्रीमिंग को भी हैंडल करें यूजिंग ओनली वन EM. ये डिफरेंट सर्वर भी हो सकते हैं या सिर्फ क्लाइंट साइड पे एक्सेस हाँ नो डेफिनेटली डिफरेंट सर्वर्स पे होगा. नहीं, ये जो ग्रिड कंट्रोल है, ग्रिड कंट्रोल सर्वर बना दिया और उसको अपने क्लाइंट को बैठ के एक्सेस करते हैं. आपको करना भी यही पड़ेगा. यू हैव टू कॉन्फ़िगर सम मशीन विद अ ग्रिड कंट्रोल दैट कैन बी एनी मशीन रिगार्डलेस ऑफ के वो रैक उस पर इंस्टॉल है या नहीं है. ठीक है, आप कोई भी एक मशीन ले लें जिसके रिसोर्सेज अच्छे हैं, उसके ऊपर अपना ग्रिड कंट्रोल कॉन्फ़िगर कर दें एंड क्लाइंट्स हैव एक्सेस. वो अकॉर्डिंग टू दियर रोल, अकॉर्डिंग टू दियर प्रोफाइल वो ग्रिड तक पहुंचेंगे एंड ग्रिड आगे से जो भी उसके रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स लोड बैलेंसिंग सब कुछ आपको करके देगा. अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे बताया, अगर मेरा एक डेटाबेस इधर फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस में चल रहा है, मैं टीम्स की बात कर रहा हूँ जी. और एक में रेप्लिका बन रहा है फॉर एग्जांपल प्लांट पे और बैकअप हमारा उधर हो रहा है, तो आई हैव टू मेंटेन सम ग्रिड कंट्रोल सर्वर ऑन हियर to maintain the progress of this one and our plant side. तो ये सेशन पॉसिबल है कि हम इधर कर लें इस तरह के सेशन? No, it's not possible here in our OCP training. OCM में हो? हाँ जी, इसके लिए आपको एक सेपरेट सिलेबस देखिए. लुक एट, अगर आप रैक पढ़ना चाहते हैं यू हैव टू रजिस्टर फॉर रैक ओरेकल स्ट्रीम. लेकिन you can do this sort of activity. It's not a one session activity. ओनली जी डेफिनेटली अगर आप वो जिसे कहते हैं सिलेबस में आएंगे तो उसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया जाएगा. सिलेबस में ला के पूरा उसमें डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ ना. अदरवाइज तो आई हैव प्लान फॉर दीज 2 वर्कशॉप्स. इसके अलावा जी डेफिनेटली इवन इफ यू गाइज आर जस्ट एनरोल्ड फॉर रैक सो वी हैव टू अरेंज ऑल हार्डवेयर. तो वो तो सारा काम जी और जस्ट इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन सम ग्रिड और इन अ स्ट्रीमिंग तो उसका डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट होगा. इसका सेशन की बात करें और एक स्ट्रीम्स का ना एक प्रैक्टिकल सेशन हमारा दोनों पहले जो है DLD बनाना है उसके लिए इसको डिस्कस करने से. Now the thing is Oracle database server. Usually हम लोग बात करते हैं database server की. So database server is a combination of two things, instance and database. Primarily these two things make Oracle database server. Now first of all database जो कि आपका पोर्शन किसी भी स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पे होगा. इट्स अ ग्रुप ऑफ यू कैन से सम रिपोजिटरी, सम फाइल्स लाइक डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीड लॉग फाइल, आर्काइव लॉग फाइल्स, all these stuff that basically represents your database. And जो आपका फाइल सिस्टम है can be as simple as your regular any hard disk. It can be complex as like your whole media library. जैसे कि आपके पास tape libraries use होती हैं and we have to use some robotic arms using some Legato architecture जिसमें आपकी 200 GB की Legato is basically a software
टू ऑपरेट योर सम मीडिया लाइब्रेरी, जो कि जस्ट लाइक आप जैसे आरमैन की कमांड देते हैं, चैनल ओपन होता है, एग्जैक्टली लाइक इफ़ यू हैव अ ह्यूज लाइब्रेरी लाइक लुक एट हियर, तो आपके सामने एक पूरा जिसे कहते हैं कबर्ड टाइप एक थिंग लगी होती है और उसमें लॉट ऑफ टेप रोल्स होते हैं, एंड वी हैव सम रोबोटिक आर्म्स ने राइट टाइम पे उसको शफल करना होता है, एंड राउंड अबाउट 200 किलोग्राम की एक टेप होती है आपकी. इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन के हाउ मच कैपेसिटी ऑफ दैट वन मीडिया लाइब्रेरी. और वो मीडिया लाइब्रेरी तकरीबन जितना बड़ा ये रूम है, इतना बड़ा आपका एक मशीन ओरिएंटेड रूम है जिसमें आप नहीं जा सकते, एंड रोबोटिक आर्म्स ऑटोमेटिकली इसमें मूव करते हैं, एंड इफ़ यू हैव सम टेराबाइट्स ऑफ डेटा and you have to configure that one. Like here in our client, like a track phone, we have our prime database on a 350 terabyte, and they are using roundabout HP UX branded tape libraries. Okay, so first of all, look at a database. सबसे पहले ज़रा बात करते हैं अपने बिफोर स्टार्टिंग मेमोरी स्ट्रक्चर जस्ट ऑफ इसका एक इजी पोर्शन करते हैं डेटाबेस. इन अ डेटाबेस अगेन वी हैव टू मेजर पोर्शंस. वन इज कॉल्ड आवर कोर डेटाबेस पोर्शन, एंड कोर डेटाबेस पोर्शन इज दिस वन, जिसके बगैर डेटाबेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और योर डेटाबेस इज नॉट फुली ऑपरेशनल इफ समवन इज मिसिंग. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेटा फाइल्स, जिसमें आपका कमिटेड प्लस इट माइट बी पॉसिबल सम टाइम अनकमिटेड डेटा भी पड़ा होता है, लाइक ऑल योर टेबल्स, क्लस्टर्स, इंडेक्सेस, आईओटीज, वो जितना भी डेटा इधर पड़ा हुआ है. देन कंट्रोल फाइल, जिसमें डेटाबेस की कंप्लीट डेटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है. बेसिकली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है कि कितनी डेटा फाइल्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी रीडू लॉग फाइल्स हैं, किधर पड़ी हुई हैं जी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उनके, आपकी कितनी आर्काइव लॉग फाइल्स हैं, जस्ट उनके की पॉइंटर्स, आपके डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस की जिसे कहते हैं DB-ID क्या है, डेटाबेस क्लोन तो नहीं है. इन एडिशन टू दैट वन डेटाबेस में कितनी टेबल स्पेसेस हैं, कौन सी डेटा फाइल ऑनलाइन है, कौन सी डेटा फाइल ऑफलाइन है, ठीक है, आपका डेटाबेस का मोड कौन सा है, रीड राइट, रीड ऑनली, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, या आप उसको कंप्लीट रिकवर करना चाहते हैं, इनकम्प्लीट करना चाहते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट हियर इनसाइड कंट्रोल फाइल. दीज आर क्वाइट स्लिम एंड स्मार्ट फाइल्स. आपको इसकी रेप्लिका कॉपीज बनानी पड़ती हैं, यूजुअली इसकी एक्सटेंशन .ctl होती है. इफ एनी वन फाइल गॉन टू बी डैमेज्ड एंड यू आर नॉट यूजिंग ASM या कोई क्लस्टर फाइल सिस्टम यूज नहीं कर रहे, your database going to be shut down immediately. Data file control file for example आपने क्या replica बना ली, replica बन गई होती हैं by default होती हैं जी. तो फॉर एग्जांपल किसी वजह से हमारा replica ये corrupt हो गई, तो हम इसके टेम्पलेट्स कुछ ऐसे सेट ऑफ टेम्पलेट्स हैं जिसकी बेस पे हम कंट्रोल फाइल्स को खुद मैन्युअली राइट कर लें. वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ जी. वी हैव अ केस. अब जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे EM की फैसिलिटीज पढ़ेंगे. वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड जॉब एंड इवेंट हैंडलिंग, इवेंट मैनेजमेंट. आपका डेटाबेस शट डाउन हो गया, ठीक है, आप अपनी एंड यू नो कि जब कंट्रोल फाइल इनएक्सेसिबल होती है तो एक पर्टिकुलर ऑरा 0 एनी टाइप लाइक एरर 1120, ठीक, ये एरर आएगा. ऑन दैट वन एरर आप क्या करो, आप एक अपनी आरमैन की स्ट्रेटजी डिफाइन करो कि जो भी उसका लेटेस्ट कंट्रोल फाइल का बैकअप है उसको उठा के रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है. दिस वन इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉब मैनेजमेंट. ये इवेंट हैंडल बेस्ड होती है कि जब ये इवेंट फायर होगा एट दैट टाइम जॉब बन के क्यू में लगी हुई है, जब भी वो आपका ये इवेंट फायर होगा एट दैट टाइम आपकी जॉब एग्जीक्यूट होगी. एंड रिमेंबर हियर योर EM इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेस, क्योंकि उसका अपना एम्बेडेड एप्लीकेशन सर्वर है. एंड वी हैव टू स्टडी दिस वन इन चैप्टर नंबर 4 इन डिटेल, ठीक है. देन डेटा फाइल्स ये भी टोटली डिपेंड करता है. इट्स यूजुअली एक्सटेंशन इज DBF, ओके, एंड ये खासी ह्यूज फाइल्स हैं. ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी टेबल स्पेसेस हैं एंड आपका कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है, कि उसकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है. इट कैन बी एज बिग एज 1 टेराबाइट. 1 टेराबाइट की एक डेटा फाइल हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है अगेन कि फाइल सिस्टम कौन सा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. देन 10G में एक टेबल स्पेस में मैक्सिमम कितनी डेटा फाइल्स हो सकती हैं? 1000. और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की भी रिस्ट्रिक्शन है. देखिए यहाँ पे टेबल स्पेसेस में दो तरह की टेबल स्पेसेस होती हैं. वन इज कॉल्ड स्मॉल साइज, वन इज कॉल्ड बिग साइज. बिग साइज टेबल स्पेस 1 टेराबाइट तक चली जाएगी, स्मॉल साइज नहीं जा सकती, ठीक है. एंड अगेन लाइक आप NTFS फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, NTFS पे तो 400 GB से ऊपर नहीं जाएगी आपकी फाइल, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप ASM यूज करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन मूव अप टू 1 टेराबाइट. ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स,
यूजली इसका एक पेयर पूरा रीडू लॉग ग्रुप्स 2 पेयर्स मेंटेन किए जाते हैं जिस पे आपकी ट्रांजैक्शन व्हेन यू एवर परफॉर्म DML लाइक इंसर्ट अपडेट डिलीट मर्ज ऑपरेशन ऑलवेज इनके ऊपर डेटा राइट डाउन किया जाता है. दे आर ऑलवेज यूज इन अ सर्कुलर फैशन और जब भी एक ग्रुप भर जाता है तो लॉग स्विच फायर होता है जो कि दूसरे ऑनलाइन अवेलेबल ग्रुप के ऊपर राइट डाउनिंग शुरू करता है. एंड डेफिनेटली कि ये ट्रांजैक्शन रिकवरी देयर होल प्राइम पर्पज इज टू प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी. इनका काम है रिकवरी ट्रांजैक्शन रिकवरी प्रोवाइड करना. So these are basically 3 your definite core database files जिसके बगैर किसी भी आर्किटेक्चर whether you are using Oracle shared server, Oracle dedicated server, rack और जो भी आप डेटा गार्ड कुछ भी कॉन्फ़िगर करें इनके बगैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जी we have to at least maintain at least two redo log files. ठीक है, 2 redo log ग्रुप्स बेसिकली. जब एक ग्रुप की फाइल्स भर जाती हैं तो दूसरे ग्रुप पे लिखा जाता है. जब दूसरे ग्रुप की भर जाती हैं तो फिर पहला ग्रुप ओवरराइट कर दिया जाता है. और अगर आप ओवरराइटिंग से बचाना चाहते हैं तो यू हैव टू क्रिएट आर्काइव लॉग फाइल्स. ओवरराइटिंग करने से पहले उसका एक बैकअप इमेज कॉपी प्रिपेयर कर ली जाती है विच इज कॉल्ड आर्काइव लॉग फाइल्स. ठीक है, सो आर्काइव लॉग फाइल्स डेफिनेटली इसी काम एक बैकअप आपको प्रोवाइड करता है. बट ऑन अदर हैंड साइड वी हैव सो मेनी अदर टाइप्स. अगर आप कोर डेटाबेस से जरा पीछे चलें कोर डेटाबेस से so we have some optional files. Optional files में these are primarily category that is regarding to optional files. And now what are basically these one? First of all called P files. P file में primarily 2 types of files. One is called SP file, server persistence file, and one is called P file. P file basically textual format की होती है और अगर उसी टेक्स्ट को पढ़ के देन उसको कन्वर्ट करना पड़े ASCII में, it would take some time. सो रादर देन के वाई नॉट सर्वर खुद ही बना ले और एक इस तरह की फाइल बनाए कि अगर आप रन टाइम पे ऑल्टर सिस्टम की कमांड के साथ कोई भी मेमोरी पैरामीटर डिस्क पैरामीटर वगैरह चेंज करते हैं तो वो आपकी SP फाइल में भी लिख दे. सो इस तरह से लास्ट टाइम ये होता था कि अप टू 8.0.5 एंड ये था सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि अगर आप कोई भी रन टाइम पे पैरामीटर चेंज करते हैं यू हैव टू एड अप इन अ P फाइल मैनुअली. सो वाई नॉट कि आप एक इस तरह की कमांड दें कि वो साथ ही आपकी दूसरी SP फाइल भी अपडेट कर दें. सो आपको P फाइल में उसके सब्सिक्वेंट एंट्री ना डालनी पड़े. SP बाइनरी है, SP को आप खुद नहीं लिखेंगे. SP is a pure binary file, but these are interconvertible. We have some Oracle commands which can convert P file into SP file and SP file into P file. We can regenerate these two. जी. But again ये भी देखिए कि Oracle का डिफॉल्ट जिसे कहते हैं प्रायोरिटी मैकेनिज्म ये कि पहले SP फाइल को लुकअप करता है. अगर SP फाइल ना मिले तो P फाइल को. अभी ये जो हम टेंजी पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे विजिट के थ्रू P फाइल में एंट्री करता हूँ ठीक है और इसको सेव करता हूँ तो इसको फिर भी मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी इसकी एंट्री SP फाइल में. We have a command. आप P फाइल को अगर विजिट के थ्रू एंटर करते हैं ना, आप P फाइल में एंट्री नहीं कर रहे होते, वो SP फाइल में एंट्री कर रहा होता है. ठीक है, और यू हैव टू यूज दिस वन कमांड ऑलवेज लाइक ऑल्टर सिस्टम. कभी भी स्कोप में आप ऑलवेज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्कोप बोथ पे सेट होता है, आप स्कोप में अगर P फाइल नहीं ना लिखेंगे तो वो मेमोरी में भी एडअप करेगा, SP फाइल में भी एडअप करेगा. बट इफ यू हैव रिटन हियर इन अ स्कोप P फाइल सो डेफिनेटली फिर उसने से कहते हैं P फाइल में खाली एंटर करना है. ओके, ऑन अदर हैंड साइड वी हैव अ पासवर्ड फाइल. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन के लिए लाइक यू वांट टू साइन अप एज अ सिस. ठीक है, जस्ट लाइक सिस के पासवर्ड से आप साइन अप होना चाहते हैं तो सिस का जो आपका बाय डिफॉल्ट पास लाइक ऑरेकल और यू हैव क्रिएटेड एनी बाइनरी, सो वो बाइनरी शेप में आपकी ये पासवर्ड फाइल स्टोर होती है और इसकी लोकेशन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट है. बहरहाल एनीहाउ इन यूनिक्स यूजली ये DBS के फोल्डर के अंदर पड़ी होती है. आपके ऑरेकल होम के अंदर DBS के फोल्डर में यूजली ये पड़ी होगी. इसकी नेमिंग कन्वेंशन भी लिटिल बिट आफ्टर सम टाइम इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा. लिनक्स में इसकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन वो DBS फोल्डर का जी जी. और बैकअप फाइल्स आर व्हाट जो हम आर्मैन के लिए फाइल्स बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड बनाते हैं या what? All these files like not only rman in a backup primarily 3 types. rman में भी जो आपने compressed बैकअप लिए हुए, इंक्रीमेंटल बैकअप आपने लिए हुए, आपने बैकअप सेट्स जो बनाए हुए या आपने जो इमेज कॉपीज बनाई हुई वो सब rman की आ गई. देन वी हैव ऑल्सो फ्लैशबैक रीडू लॉग फाइल्स. अगर आपकी फ्लैशबैक रिकवरी ऑन है तो फ्लैशबैक रीडू लॉग फाइल्स वो एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ जी बेसिकली दीज आर समथिंग एल्स फ्रॉम रीडू लॉग फाइल्स. इनका और रीडू लॉग का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है. ये बेसिकली फ्लैशबैक रिकवरी के लिए होती हैं.
And then another one, third one category of backup files, which is called like your auto backup. Auto like a concept of recycle bin. जैसे आपके पास आता है recycle bin का concept. So whether आपने flashback recovery enable नहीं की हुई और you don't have any RMAN, आप लिखें जी, it's just for rollback. लेकिन वो जो rollback segments है ना, they are basically prepared inside the data files, but these are something else. ये कि like say आपने drop table की command दे दी and you know it's auto commit. Drop table का name, but table gone never dropped here in 10G. It's gone to be stored in a recycle bin. हालांकि आपने flashback recovery enable नहीं की, आपने RMAN वगैरह कुछ enable नहीं किया. So that is basically your recycle bin area. वो आपका auto जिसे कहते हैं flashback backup है. And that one is basically auto backup files. So three major type of files categories इधर backup आपकी files में storage होंगी. तो इसमें कमांड चला सॉरी इसमें जो कमांड चलाते हैं enable row movement वो ना चलाएं अगर वो तो उसके रिपीट नहीं हो सकती फ्लैशबैक. देखें मसला ये होता है कि जब आप ड्रॉप करते हैं ना किसी टेबल को तो लॉजिकली दैट गॉन टू बी ड्रॉप्ड बट फिजिकली दैट कैन नॉट गॉन टू बी ड्रॉप. वो उतना सेगमेंट यूज नहीं होता. हाँ, एनेबल रो मूवमेंट का इतना रोल है अगर आपके पास हैवी जिसे कहते हैं इंसर्शन हो रही हो उस वक्त से आपकी हैवी इंसर्शन है, इट माइट बी पॉसिबल कि उसको वो एरिया कंज्यूम करना पड़ गया. अब डेफिनेटली एक चीज़ जो रिसाइकल बिन से आपने रीस्टोर करनी है, ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिनल जगह पे जाके स्टोर हो. इट्स परफेक्टली लाइक रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन आपको कहता है कि रीस्टोर या रीस्टोर टू समथिंग एल्स, किसी और जगह पे वो ड्राइव शायद भरी जा चुकी है. तो अगर आप एनेबल रो मूवमेंट करेंगे तो देर इज़ अ गारंटी कि वो चीज़ आपको वापस रिकवर हो जाएगी किसी नई जगह पे भी. अगर आप एनेबल रो मूवमेंट नहीं करते तो इस वक्त तो 10G रिलीज आपको कभी भी फ्लैशबैक करके ही नहीं देगी. वो कहेगी कि आपकी रो मूवमेंट एनेबल ही नहीं है. ठीक है, आप इसकी रो मूवमेंट एनेबल करें, बट इफ़ यू हैव योर ओन प्रोसीजर्स, आप EM के थ्रू नहीं करते, आपने अपना कोई प्रोसीजर कोई SH फाइल लिखी हुई है, अपनी लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग की हुई है, तो आप ये काम कर सकते हैं. लेकिन देर इज़ नो गारंटी कि आपकी चीज़ रिकवर होगी. इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टांसेस कि अगर आपके पास जिसे कहते हैं रिसाइकल बिन आपकी फ्री पड़ी रही, वो स्टोरेज एरिया को किसी ने इफेक्ट नहीं किया, वो एज आउट नहीं हुआ, तो देन देर इज़ अ चांस. बट 90% देर इज़ अ चांस की चीज़ रिकवर नहीं होगी. सो दैट साइड इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एनेबल रो मूवमेंट कर लिया करें. टेबल लेवल पे करेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली आप टेबल लेवल सेगमेंट लेवल पे करेंगे. जब हम ड्रॉप कर देते हैं टेबल को जी, तो इनएक्टिव हो जाएगा वो बेसिकली जहाँ तक उसमें ट्रांजैक्शन हुई भी होगी वहाँ, उसके बाद जब तक रिकवर नहीं करते दोबारा. जी जी. तो वहीं तक की ट्रांजैक्शन होगी कि एक्टिव रहेगा उसके साथ? नो 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 नो, inactive. Definitely it's going to be inactive. And then the last one called alert, trace and audit files. Alert log files जिसमें तमाम बैकग्राउंड प्रोसेस फाइल्स आ गई, अलर्ट लॉग फाइल्स आ गई, जिसमें ट्रेस, यूजर ट्रेस, बैकग्राउंड ट्रेस, अलर्ट एंड ऑडिटिंग. ऑडिट अगर आपने एनेबल किया हुआ है, सो ऑडिट में इफ यू हैव डन ऑडिटिंग एट अ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, नो, उसकी एक सेपरेट कंडीशन. यस, अलर्ट इज समथिंग एल्स, ट्रेस इज समथिंग एल्स एंड ऑडिट इज समथिंग एल्स. अलर्ट लॉग फाइल एज यू नो कि आपकी डेटाबेस पे एक ही होती है, यूजली उसकी नेमिंग कन्वेंशन सेपरेट है. जबकि बैकग्राउंड ट्रेस फाइल हर एक बैकग्राउंड प्रोसेस लाइक एसमून, पीमून, लॉग राइटर, डीबी राइटर की अपनी अपनी है. यूजर ट्रेस फाइल्स हर किसी की अपनी अपनी है इफ़ यू हैव एनेबल्ड योर सेशन ट्रैकिंग. और अगर आप ऑडिट फाइल बनाते हैं तो ऑडिट फाइल ऑलवेज सेपरेट बनती है इन तमाम फाइल से. ऑडिट ट्रेल की इंफॉर्मेशन ट्रेस में जाती है? नो, उसका अपना पाथ होता है. यू कैन प्लेस इनसाइड अ ट्रेस बट दैट्स नॉट हाईली रिकमेंडेड. उसका होता है ऑडिट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर डेस्ट, वो जो डेस्टिनेशन है वो आपने अपनी देनी है, एंड दैट शुड बी समथिंग एल्स फ्रॉम ट्रेस. उसके लिए बेसिक एंट्रीज है वो, उसके लिए ए डंप का फोल्डर सेपरेट बनाया जाता है. जैसे इसका बी डंप का, सी डंप का, यू डंप का है ना, उसका ए डंप का होता है. खुद से बनाना पड़ेगा? नो, बना होता है, ऑलरेडी बना होता है. OFA ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर से इसके सब चीज़ें बनी नहीं. देन जी, फर्स्ट केस वो तो बड़े मतलब एंटरप्राइज लेवल पे सारा कुछ पूरा होता है, लाइक एक डेस्कटॉप पीसी में बैकअप फाइल्स कोई बैकअप वगैरह नहीं लिया हुआ. तो फर्स्ट केस ऊपर 3 जो फाइलें हैं इनमें से कौन सी ज़रूरी है? फर्स्ट केस सिस्टम आपका क्रैश, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है और मेरे पास प्रोजेक्ट ये तीनों फिजिकल फाइलें पड़ी हुई हैं, Okay. ये 2 एटलीस्ट होनी चाहिए तो मेरी रिकवरी हो सकती है.
देखिए, अगर सम पोर्शन ऑफ कंट्रोल फाइल इज गॉन टू बी डैमेज मींस कि आपका उतना डेटा ही लॉस्ट होगा इफ़ यू डोंट हैव एनी बैकअप। अगर रीडू लॉग फाइल्स आपकी डैमेज हो जाती हैं तो जितनी ट्रांजैक्शंस उनमें लिखी हुई हैं इफ़ दे आर नॉट अप्लाइड टू डेटा फाइल्स तो सिंपल उतना पोर्शन इफेक्ट होगा। हाँ जी, और अगर आपकी कंट्रोल फाइल गॉन टू डैमेज हो गई तो समझ लें कि सब चीज़ें ही आपकी दे आर ऑल गॉन टू बी प्योर डिजास्टर, क्योंकि कंट्रोल फाइल से ही इसने सबको रिकॉग्नाइज करना होता है। They are slim and smart files, not more than 11, 10 or 25 megabyte, but it might be possible कि if your all control files going to be damaged, तो आपके लिए जो data files या आपकी redo log files पड़ी हैं, if there is no backup, so it's a worst case. Control files के disaster या damage के basic causes can you explain, for example? So many, like number one, जैसे कि operating system ने header के अंदर कोई garbage लिख दिया, पूरी की पूरी गई, but still अगर आपने LVMs वगैरह बनाए हुए हैं और आपका मिररिंग हो रही है तो आप उसकी बैकअप मिरर कॉपी निकाल लेते हो। वो तो रिकवरी है ना, डैमेज की बात कर रहा हूँ, डैमेज की बेसिक कॉजेस कि हमने वैसे ही लाइट चली गई। इट्स क्वाइट रेयर, बट यूजुअली ऐसा होता है कि वो डैमेज नहीं होता, दैट वाज नॉट डैमेज, दैट वाज इन यू कैन से अ कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि डेटा फाइल के हेडर्स, कंट्रोल फाइल के हेडर्स, रीडू लॉग फाइल के हेडर आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते। जब आप नेक्स्ट टाइम स्टार्टअप करते हैं तो यूजुअली इंस्टेंस रिकवरी चलता है एंड दैट गॉन टू बी जिसे कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड, बट इन सम केसेस लाइक इलेक्ट्रिक पावर फेलियर हुआ और बड़ा जिसे कहते हैं एबनॉर्मल टाइप का बिहेवियर हुआ, लाइक योर वन कंट्रोल फाइल गॉन टू बी डैमेज, उसमें अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब वंस योर ऑपरेटिंग सिस्टम गॉन टू बी शट डाउन एबनॉर्मली, सो देयर इज नो गारंटी कि क्या कुछ होगा, योर कंट्रोल फाइल कैन बी डैमेज्ड, हो सकती है, माइट बी डैमेज। डेटाबेस भी एबनॉर्मली शट डाउन हुआ या ऑपरेटिंग सिस्टम एबनॉर्मली हुआ तभी डैमेज हो सकता है। जी, एट दैट टाइम देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी टाइप, जो फाइल जिसमें उस वक्त लिखा जा रहा होगा, रीड राइट जिसमें हो रहा होता है, उसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं चांसेस होते हैं। हमारा सीन है और ये तीनों फाइलें डी में रखी हुई हैं, ठीक है, और सी क्रैश इट नेवर माइंड के सी क्रैश होती है, डेफिनेटली दैट वुड अफेक्ट डी। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं क्रैश होता है, मीन्स योर ईच एंड एवरीथिंग गॉन टू बी क्रैश्ड, योर डेटाबेस आल्सो गॉन टू बी क्रैश्ड। फिजिकली के तीनों पड़ी हैं। फाइल पड़ी भी रहे तो वो आपके लिए किसी काम की नहीं। हाँ, उसके लिए फिर एक देसी तरीका है, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्लोनिंग, डेटाबेस क्लोनिंग। क्लोनिंग इज बेसिकली योर कंट्रोल फाइल टू कंट्रोल फाइल DBID कॉपी पेस्ट। आप एक काम करें, इसका एक स्क्रिप्ट बन जाता है, आप वो स्क्रिप्ट मुझसे भी ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड DB क्लोनिंग। अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने री इंस्टॉल किया, वेदर इट्स HPUX, वेदर इट्स यूनिक्स, लिनक्स, एनीथिंग। अब मेरा सॉफ्टवेयर सारा गॉन टू बी करप्ट हो चुका है, मुझे नए सिरे से सॉफ्टवेयर करना पड़ा, मुझे नए सिरे से डेटाबेस करना पड़ा, बट रिमेंबर उसमें सिंपल एक पिन पॉइंट होता है, आप डेटाबेस का वही सीड रखें जो पहले था, आप डेटाबेस के तमाम माउंट पॉइंट्स की वही कॉन्फ़िगरेशन रखें जो पहले थी, उसे जस्ट शट डाउन करें और तमाम फाइल्स रिप्लेस करवा दें। ऑल डेटा फाइल, रीडू लॉग फाइल, डेटा फाइल जो भी आपके पास बैकअप पे पड़ा है, इफ़ यू जस्ट उसके इंस्टेंस को प्रॉपर शट डाउन करके रिप्लेस करवा के आप कर दें। जी जी, जो फिजिकली उसकी फाइल्स बनेंगी उसे डिलीट करके अपनी जो पुरानी वाली आपकी बैकअप में फाइल्स पड़ी हैं उसे ओवरराइट करवा दें, उसके इंस्टेंस को दोबारा आप करें, उसकी दुनिया चेंज हो चुकी होगी। रीजन नो, क्लोनिंग इज समथिंग एल्स। ये तो मैंने एक देसी क्लोनिंग का तरीका बताया ना आपको। अनदर वन जो क्लोनिंग, जो ओरिजिनल क्लोनिंग कहलाती है, दैट इज नॉट लाइक दैट वन। क्लोनिंग इज समथिंग एल्स, लाइक लुक एट हियर, देसी क्लोनिंग का दोबारा बताएं क्या? मैं आपको बता दूंगा यार। ये देसी क्लोनिंग। हाँ जी, ये देसी क्लोनिंग है, मीन्स इन अ सेंस के आप फाइल्स को रिप्लेस कर देते हैं, बट क्लोनिंग इज नॉट लाइक दैट वन। क्लोनिंग इज दैट वन कि मैं इसका एक स्क्रिप्ट बना लूंगा जो कि मेरी ट्रेस फाइल में, अगर आप कभी लिखें ना ऑल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस, तो वो आपको एक स्क्रिप्ट बना देता है लंबा चौड़ा सा, उसमें लिखा होता है क्रिएट कंट्रोल फाइल, आपकी डेटा फाइल, रीडू लॉग फाइल जहाँ पे भी पड़ी हुई है। लेकिन ये जो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता। लाइक से आपकी एक सैंड डिवाइस डैमेज हो गई, उसके ऊपर माउंट पॉइंट्स कुछ और थे, अब आपके पास एक बैकअप सैंड डिवाइस है, उसके ऊपर माउंट पॉइंट्स के नेम ही डिफरेंट है, अब फाइलें वही हैं, फोल्डर भी वही हैं, बट माउंट पॉइंट्स के नेम डिफरेंट है, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू प्रॉपर क्लोनिंग। उसका एक स्क्रिप्ट होता है, वो स्क्रिप्ट चलेगा, वो चलेगा तो नई कंट्रोल फाइल बना देगा, और उस नई कंट्रोल फाइल जी डेफिनेटली इन तमाम कामों के लिए डेटाबेस यू हैव टू शट डाउन योर डेटाबेस, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकवरी है। इनकम्प्लीट रिकवरी होती भी बड़ी रेयर चांसेस में, और जब ऐसा होता है तो यू हैव टू डाउन टाइम होता है। देखें, ये डिपेंड करता है एट योर SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर मीन टाइम टू रिकवर, MTTR एंड MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या है।
अगर आपने कोई डेटा गार्ड या कोई रैक कॉन्फ़िगर नहीं किया, यू डेफिनेटली नो इट वेदर यू हैव आरमैन, और आरमैन में भी चाहे रिकवरी कैटलॉग बना लें आप, इफ योर डेटाबेस गॉन टू बी डैमेज, योर MTTR शुड बी मिनिमाइज बट नॉट 0 सेकेंड। ये आपको पहले से पता है, बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्फ़िगर्ड एनी डेटा गार्ड, एनी रैक। आप नहीं कह सकते कि आपका MTTR 0 सेकेंड है। रीज़न उसने रीस्टोर होते हुए, उसने आप होते हुए टाइम लेना ही लेना है। और अगर आप जिसे कहते हैं जब तक आप उसकी प्रॉपर कंसिडरेशंस नहीं लेंगे, डेफिनेटली आप MTTR को डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक और सिनेरियो, लाइक कंट्रोल फाइल मेरे पास है ना, हफ्ता पहले का बैकअप रखा हुआ है, राइट? उसके बाद सिस्टम करप्ट हो गया, कंट्रोल फाइल भी करप्टेड है जी। वो हफ्ता पहले वाला जो कंट्रोल फाइल फिजिकल मैंने ली थी, वो किसी तरह से मैं रिकवरी में ला सकता हूँ? ला सकते हैं। अच्छा, जो डाटा है वो मुझे हफ्ता पहले का मिलेगा या वो लेटेस्ट मिलेगा? डेफिनेटली हफ्ता पहले का मिलेगा। अगर आप बैकअप कंट्रोल फाइल यूज़ करते हैं तो आपको जिसे कहते हैं, आपके पास दो चॉइसेस हैं। अब ये टोटल डिपेंड करता है कि क्या आपने रिकवरी कैटलॉग बनाई थी कि नहीं बनाई थी। इफ़ यू हैव क्रिएटेड रिकवरी कैटलॉग, देन यू हैव टू रिक्रिएट कंट्रोल फाइल अकॉर्डिंग टू द करंट वन SCN। आप करंट SCN नंबर के अकॉर्डिंगली इसको रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास करंट SCN की नंबर की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सो यू हैव टू सफ़र, फिर तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। एक हफ्ते की एंट्री दोबारा करेंगे जी, आपको एक हफ्ते की, अब इसमें ये चीज़ें आएंगी। इन योर वर्कशॉप 2 वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज कंप्लीट रिकवरी, व्हाट इज इनकम्प्लीट रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी कहाँ पे करते हैं, इनकम्प्लीट रिकवरी कहाँ पे करते हैं, और कहाँ पे जाके हमारी कंप्लीट या इनकम्प्लीट रिकवरी की बस हो जाएगी। जी, बेसिकली। ओके, सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन आवर टॉपिक। ये तो हो गया आपका डेटाबेस। व्हाट अबाउट योर इंस्टेंस? सो व्हाई नॉट गिव मी अ 5 minute टी ब्रेक